ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਚੈਪਟਰ ਹੈ 6 ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ ਵੈ ICSE ਦਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੇਸਡ ਔਨ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਇਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸਮਸ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਐਕਸਰਸਾइज देखी है, पूरी एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स दोनों मिला के जिस जिस तरह के क्वेश्चनस ने उन्होंने टाइप्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਫਰਸਟ ਟਾਈਪ ਹੈ, ਹਜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 4 ਹੀ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤਾਂ 4 ਟਾਈਪਸ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਟਾਈਪਸ ਹੋਰ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾ ਦਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਟਾਈਪ ਹੈ, ਫਸਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਦ ਸਮ ਆਫ 2 ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 58, ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੰਬਰ ਐਕਸੀਡਸ ਟਵਾਈਸ ਦ ਸਮਾਲਰ ਨੰਬਰ ਬਾय 1, ਫਾइंड ਨੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋ ਸਮ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਮ ਹੈ ਉਹ 58 ਦੱਸਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾਤੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਵੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਵਾਈਸ ਸਮਾਲਰ ਨੰਬਰ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੰਬਰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਫਾइंड ਕਰਨੇ ਨੇ। सेकेंड क्वेश्चन देख लो, एस टू बी सेम द सम ऑफ 2 नंबर इज़ 44, ट्वाइस द लार्जर इज़ एडेड टू थ्राइस द स्मॉलर, रिजल्ट इज़ 108। कि अगर लार्जर का ट्वाइस कर दो स्मॉलर का थ्राइस कर दो, दोनों को प्लस कर दो तो रिजल्ट 108 आएगा। ये भी सेम टू सेम है, कंडीशन चेंज करती बस। तीसरा सम ऑफ 2 नंबर इज़ 34, फिर दोबारा मतलब कि जोड़े तीनों टाइप से ए 2 एक्सरसाइज ने एक एग्जाम्पल चो चुक्या गया मैं, तो तीनों अगर असी देखिए तीनों के तीनों चो एक चीज़ कॉमन है, सम ऑफ 2 नंबर, सम ऑफ 2 नंबर, सम ऑफ 2 नंबर। जो भी यहो जिहा कोई सम आ जाए जिस लिखा हो सम ऑफ 2 नंबरस, तो इसनों करने का बहुत ही एक ईजी वे हैगा वै। एवले सम जो ने सब तो ज़्यादा ईजी वाले ने। ठीक है, पहला क्वेश्चन असीं हुण फिर करते हैं। इत्थे लिखिया द सम ऑफ 2 नंबरस, 2 नंबरस ने ते अगे लिखिया ग्रेटर तो स्मॉलर नंबर है, तो असीं लैट कर लेना है पहला कि ग्रेटर नंबर नूं असीं एक्स मान लैंदे, स्मॉलर नंबर नूं वाई मान लैंदे। हुण कुछ भी तुसीं लैट कर सकदे, तुहाडी मर्जी है। ਇੱਥੇ A B C D ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ X Y ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਮਾਲਰ ਨੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਮ ਆਫ 2 ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 58, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ 58 ਬਣ ਰਿਹਾ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਸਮਾਲਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ATQ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖ ਕੇ ਹੁਣ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੱਸੀਆਂ ਮੈਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈਆਂ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਲਿਖੀ, ਦ ਸਮ ਆਫ 2 ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 58, 2 ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਲੈਟ ਕੀਤੇ ਸੀ X ਤੇ Y, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ 58 ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਤੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੀਤਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਦ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੰਬਰ ਐਕਸੀਡਸ ਟਵਾਈਸ ਦ ਸਮਾਲਰ ਨੰਬਰ ਬਾय 1। ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੰਬਰ ਯਾਨੀ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ, ਐਕਸੀਡਸ ਜਿੱਥੇ ਆ ਜੇ ਉੱਥੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਾ ਦਿਓ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੰਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ X ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਾਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸੀਡਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, मतलब कि ग्रेटर नंबर वध हैगा वै। ठीक है, जो चीज़ वध होंदी हैगी है उसनों उदा ही रहने देना है। फिर अगे लिखे ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, की लिखे ट्वाइस द स्मॉलर नंबर यानी कि स्मॉलर नंबर जो वाई सीगा उसका ट्वाइस, उस तो भी +1 बाय 1। इन्ना का कहने का मतलब से कि जो ग्रेटर नंबर हैगा वै ना, ग्रेटर नंबर हैगा वै कोई भी मान लो, जिवें कि मैं अगर मान लवां अगर हैगा वै 61 हैगा वै, तो ग्रेटर नंबर इन्ना वड्डा है कि ट्वाइस कर दिए स्मॉलर का, ट्वाइस कर दिए स्मॉलर का, मैं मानना स्मॉलर 30 है, ट्वाइस कर दिए स्मॉलर का, इन्हों मतलब कि मल्टीप्लाई करेंगे 60 बनेगा ना। तो उस तो बाद भी एक वड्डा होएगा ग्रेटर नंबर, एक वड्डा है यानी कि अगर देखना हो तो असीं इस तरह कह सकते हैं कि अगर ग्रेटर नंबर इन्ना वड्डा है कि असीं स्मॉलर नंबर नूं ट्वाइस करन तो बाद उस च +1 करना पेगा दोनों नूं मैच करन दी। ठीक है, तो यह चीज़ उन्होंने कही हुई है। जितना इसनों समझण दा मैं वे इत्थे दस्सिया सीगा एग्जाम्पल है, इसनों देखने की लोड़ नहीं, बट इतों तुसीं देख सकते हो चीज़ कि लिखना किद्दां। ग्रेटर नंबर लिख दो, एक्सीड्स इक्वल टू ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, ट्वाइस 2 स्मॉलर नंबर 2y लिखता, बाय 1। हुण बाय 1 लिखिया, इत्थे एक्सीड्स लिखिया तो +1 होएगा। अगर लोअर लिखिया होंदा कि लोअर हो रहा या लैसर हो रहा तो -1 कर देंगे। ठीक है, इस तरह हुण आपां नूं सैकेंड कंडीशन भी पता चल गई है। 2 कंडीशनां ने दोनों कंडीशनां बना लिया। हुण इस सम दे विच सब तो वधिया गल पता की है, दोनों इक्वेशन च अगर असीं देखिए साडे तो
एक्स कल्ला है, मतलब एक्स के नाल कोई 1 2 3 4 इदा की टर्म नहीं है, कल्ला मतलब कि एक्स के नाल 1 होवे तां जो सही है, बट एक्स के नाल 2 3 4 इदा की कोई टर्म नहीं है। सेम वाई के नाल भी कोई टर्म नहीं है। दूसरी इक्वेशन च भी सेम एक्स के नाल वाई के नाल कोई टर्म। जदों भी ਇਹੋ ਜਿਹੀ चीज़ होएगी ना ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮ करना सब तो ज़्यादा ईजी हैगा वै। क्यों? क्योंकि इस लग जाता सबस्टिट्यूशन मैथड। सबस्टिट्यूशन मैथड का मतलब होंगे एक वैल्यू ने दूसरी वैल्यू च पुट करना। हुण जिवें आ देखो एस च की सी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 58, दूसरी इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू 2y प्लस 1। हुण सानू साफ साफ दिख रहा है एक्स की वैल्यू की है 2y प्लस 1 है, एक्स की वैल्यू ही है, यही वैल्यू इत्थे असीं पुट कर देंगे। ठीक है, तो असीं पुट कर दिए अगर तो की बन जाएगा इस चीज़ दे विच। ठीक है, एवली वैल्यू एक्स ही है, इत्थे पुट कर दो, एक्स की जगह लिखता 2y प्लस 1, बाकी सारा इधर रखना प्लस वाई इज इक्वल टू 58। ठीक है, हुण तुहानूं यह चीज़ पता होएगी कि जो वाई तो वाई वाले ने उही प्लस होणगे, 1 2 3 नहीं प्लस होएगा। तो वाई वाला कौन है? ए है 2y तो एक कला वाई, 2y प्लस वाई कितना हो जाएगा? टोटल वाई कितने हो जाएंगे? 3y हो जाएंगे साढ़े तो 3y प्लस 1। तो इतने मैं साइड पर भी लिखा 2y वाई नूं इधर ही किया, कुछ चेंज नहीं किया। ठीक है, 2y सी तो वाई याद करा देवां कि कहते हैं साइन चेंज कदों होंदा है जदों इक्वल टू के दूसरे पार चलते। इक्वल टू के दूसरे पार नहीं गया, ए वाई ए सीगा, वाई इत्थे चला गया, 1 इत्थे आ गया, लेकिन इक्वल टू नूं टप्पिया नहीं। जदों इक्वल टू नूं टप्पे तद साइन चेंज होंदा है वै, तो इत्थे नहीं टप्पिया तो उदा का उदा ही रहेगा। 2y प्लस वाई 3y हो जाएगा, तो 3y प्लस 1 उदा ही 58 भी हो जाएगी। प्लस 1 सीगा, दूसरी साइड गया -1 तो 57, 3 सीगा 3y इधर जदों भी यह नंबर होवे याद रखना, कोई भी नंबर इदा का होवे 3y की जगह 2y 5y 9y तो जो नाल नंबर होंदा वो नीचे चल जाता होंदा हैगा वै। जदों यह कली चीज़ बच जाए, कोई होर नाल प्लस माइनस ना हो तद, तो 3 नीचे चल जाएगा, डिवाइडली 57/3 19 वैल्यू आ गई। वाई की वैल्यू डायरैक्ट 19 आ गई है साढ़े को, वाई निकल गया। हुण असीं दोनों इक्वेशन दोबारा देखांगे, कोई भी इक्वेशन साडी मर्जी की चक लो, ए चकनी है चक लो, ए चकनी है चक लो, वाई की वैल्यू पुट करांगे चैक करांगे। हुण मैं इत्थे किहड़ी चैक की? मैं फस्ट देखिया, फस्ट वाली इक्वेशन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 58, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 58 सी, तो मैं लिख भी देना कि फस्ट इक्वेशन सी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 58। ठीक है, वाई की वैल्यू असी 19 कढ़ी है, 19 पुट कर दो, एक्स प्लस 19 इज इक्वल टू 58 प्लस है, हुण प्लस है दूसरी साइड भेजना है क्योंकि एक्स सानू एक्स की वैल्यू चाहिए है, 19 का तो कोई मतलब ही नहीं सानू, तो 19 दूसरी साइड भेज दो, दूसरी साइड जाएगा इत्थे की प्लस हो रहा सी, दूसरी साइड माइनस हो जाएगा, 58 चो 19 के 39 साडा आंसर आ जाएगा। तो साढ़े दो नंबर ने, एक 19 तो 39। हुण इत्थे आंसर निकल गया। ठीक है, बट सानू किद्दां पता कि यही आंसर सही है? पेपर थोड़ा ना पता लगता सी, तो कुछ भी इदा कर देवांगे, कुछ भी गलत इक्वेशन बनाती। चैक करने का तरीका की है? चैक करने का तरीका है पहला तुहाडी कंडीशनां सही होनी चाहिए। फर्स्ट तो यही कंडीशन यही है कि आ दोनों कंडीशनां सही बनाओ, क्वेश्चन देख के समझो तो इन्हों सही बनाओ। जब तक तुहानूं यह बनानी नहीं आएगी तब तक कुछ काम नहीं होना। सैकेंड, हुण जदों यह बन गई तो आंसर भी कढ़ लेने। वैरीफिकेशन इनू लिखने की कोई लोड़ नहीं एग्जाम मैं तां ही लिखता नॉट टू राइट इन एग्जाम, बस अपनी कन्फर्मेशन लिए रफ तो ट्राई कर लो। मैं इन्ना वधा चढ़ा के भी ना लिखना, रफली लिखना है। मैं हुण इधर समझाने लिए इन्ना बैटरली एक्सप्लेन किया। साडी फर्स्ट कंडीशन किसी दोनों कंडीशन आते देखना। फर्स्ट कंडीशन सी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 58, कंडीशन लिखो एक्स की वैल्यू 39 सी, वाई की 19 सी, दोनों पुट कर दो। एक्स की वैल्यू 39, वाई की 19 तो इक्वल टू 58 सी। 39 प्लस 19 58 ही होंदा। 58 इज इक्वल टू 58 LHS RHS हो गया, यानी कि आंसर करेक्ट है। फर्स्ट सैटिस्फाई कर रही है, लेकिन असी पूरा कन्फर्म होने सैकेंड भी ट्राई करांगे क्योंकि कई होंगी हैं एक नूं कर दें दूसरे नूं नहीं कर पाती। तो दूसरी इक्वेशन सी एक्स इज इक्वल टू 2y प्लस 1, एक्स की वैल्यू सी 39 ही रखो, वाई की वैल्यू सी 19 तो 19 2 इंटू 19 38 प्लस 1 39, तो दोनों साइड दोबारा सेम आ गई, यानी कि अपना आंसर करैक्ट आया सी आया। ठीक है, वेरीफिकेशन लिखने की लोड़ नहीं है, जस्ट तुहानूं दसना ताकि तुसीं जदों पेपर कर लवो लास्ट जो यहो जिहा क्वेश्चन जोड़े हो टाइम बचा हो तो तुसीं देख लो, या तुसीं जदों अटैम्प्ट कर रहे हो नाल की कहते इसनों जिद्दां ही आंसर आए चैक कर लवो कि आंसर गलत ना हो जाए कितने आ वाला, कि मेहनत ला के तुसीं इसनों 15 मिनट सॉल्व करो उस तो बाद की कहते पता चले आंसर ही गलत निकलिया तां करके। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन सीगा साडा कि द सम ऑफ 2 नंबर इज़ 44, दो नंबर हैगे ने उन्हों का सम 44 है, यानी कि उन्होंने पहली कंडीशन आप ही दसती, दो सम ने दो नंबर ने दोनों का सम 44 है, तो एक्स प्लस वाई इक्वल 44, लार्जर नंबर एक्स स्मॉल नंबर वाई सेम हो ही चुका मैं। देन सेकंड कंडीशन दे, इफ़ ट्वाइस द लार्जर इज एडेड टू थ्राइस द स्मॉलर
द रिजल्ट इज़ 108, ट्वाइस द लार्जर यानी कि ट्वाइस द लार्जर 2x एंड थ्राइस द लार्ज इज एडेड यानी कि प्लस द प्लस टू थ्राइस द स्मॉलर द थ्राइस द स्मॉलर 3 इंटू स्मॉलर जो सी वाई ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ 108 ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾ ਲੀਆਂ ਸੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਣਾ ਲੀਆਂ, ਕੁਛ ਇਸ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ x + y = 44, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਯਾਨੀ ਕਿ x y ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਿਜਿਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 1 ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ 1, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 0 ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, 0 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, x ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਇੱਥੇ x ਲਿਖਿਆ ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ 1 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਕਿ x ਤੇ y ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਸਮ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ x + y = 44 ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 2x + 3y = 108 ਹੈ। ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ 'ਚ ਸਿਰਫ ਜਿਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨਾਲ 1 ਲੱਗਿਆ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਇਕੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ x ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਹੈ, y ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਹੈਗਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, 2y ਨਹੀਂ ਹੈ, 3y ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ 2x ਨਹੀਂ ਹੈ, 3x ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਕੱਲਾ x ਅਤੇ ਇਕੱਲਾ y ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ x, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? x ਹੈਗਾ ਵਾ, x ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, x ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਾਈਡ ਰੱਖਿਆ, y ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ 44 - y ਇਹ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਮੇਰੀ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਦੂਸਰੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ x ਅਤੇ y ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ x ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉੱਦਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਕਿਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਫਸਟ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਹੈ ਰਹੀ, ਫਸਟ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਂ y ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਭੇਜਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ, ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ x = 44 - y ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। x ਹੈ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ 2, x = 44 - y ਪਲੱਸ 3y ਉੱਦਾਂ ਹੀ 108। 2 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, 2 ਨੂੰ 44 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 88, 2 ਨੂੰ -y ਨਾਲ ਕੀਤਾ -2y, ਅੱਗੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, 3y ਇੱਥੇ ਹੈ 108, 2y ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸੀ ਪਲੱਸ 3y ਸੀਗਾ ਤਾਂ y ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਪਲੱਸ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਲੱਸ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਵੀ ਪਲੱਸ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਾਈਨਸ ਹੋਣ ਹੁੰਦਾ ਪਲੱਸ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਈਨ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਾਈਨਸ ਜਾਂ ਪਲੱਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਈਨਸ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਈਨ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਜੋ ਵੀ ਵੱਡੀ ਟਰਮ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਏ y ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਹੋਵੇਗਾ ਮਾਈਨਸ ਹੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 - 2 ਯਾਨੀ 1, 3 - 2 1 ਆ ਜਾਏਗਾ, 1y, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਈਨ ਕਿਹਦਾ ਹੈਗਾ? ਬਿਗ ਕੌਣ ਹੈ? 3 ਹੈ ਕਿ 2 ਹੈ? ਓਬਵੀਅਸਲੀ 3 ਹੈ। 3 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਿਆ? ਪਲੱਸ, ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਵੀ ਪਲੱਸ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 88 + y = 108, 88 ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਜਾਏਗਾ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰੀ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਾਈਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਕੁਛ ਸਾਈਨ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਗਿਆ -88 ਹੋ ਗਿਆ, 108 'ਚੋਂ 88 ਕੱਟ ਦੇ 3 ਆ ਗਿਆ, y ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, 3 ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ 1 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ 3 'ਚ ਕੀਤਾ, ਇਸ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, x = 44 - y ਹੈ, y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ 20, 44 - 20 24, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲ ਗਈ ਡਾਇਰੈਕਟ 24, 20 ਵੀ ਹੈ 24 ਹੈ, ਦੋ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੇ ਦੋਨੋਂ ਨੰਬਰਸ। ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ x + y = 44, x ਸਾਡਾ 24 ਨਿਕਲਿਆ, y ਸਾਡਾ 20 ਨਿਕਲਿਆ, प्लस करके 44 ही बनता है, तो 44 = 44 दोनों साइड्स इक्वल करेक्ट हो गया। दूसरी कंडीशन से 2x + 3y = 108, x 24 y 20 मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 24 48 3 × 20 60 दोनों ने प्लस किया 108 दोनों की कहते हैं दोबारा सेम टू सेम आ गई साइड्स। दैन इस तो अगे अगर असीं देखिए थर्ड क्वेश्चन इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। ਹੁਣ ਇਹ ਟਾਈਪ ਦਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਖੇਚਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਚੱਕ ਕੇ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮ ਹੈ। ਦ ਸਮ ਆਫ 2 ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 34।
पहली कंडीशन सम ऑफ टू नंबर इज़ 34, x प्लस वाई इज इक्वल टू 34। देन ग्रेटर नंबर एनो देखो ग्रेटर नंबर फिर इज़ आ गया, पहले ग्रेटर नंबर जो भी x है मैंने x मनया तो x इज़ दा मतलब इज इक्वल टू पा दो 2 लैस दैन 3 टाइम ऑफ स्मॉलर नंबर, मतलब कि 2 लैस का मतलब की होंदा -2, ठीक है। तो मैं पहले ही -2 पता बाद जो भी बात तो तुहाडी मर्जी है। 2 लैस का मतलब -2 तो इज़ का मतलब इज इक्वल टू सीगा, उस तो बाद उन्होंने 2 लैस लिखा तो -2 करता, फिर उन्होंने कितना किदे तो 2 लैस है 3 टाइम्स ऑफ स्मॉलर नंबर, 3 टाइम्स ऑफ स्मॉलर नंबर तो लैस है तो 3 टाइम्स ऑफ स्मॉलर नंबर भी लिखता हूँ, दोनों दे विचकार प्लस आ गए, ठीक है। 2 लैस सीगा तो -2, 3y तो पॉजिटिव सीधा +3। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੈਕੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੰਬਰ यानी कि x इज़ इक्वल टू 2 लैस -2 दैन सीगा 3 टाइम्स ऑफ स्मॉलर नंबर 3 टाइम्स 3y, ठीक है। नंबर फाइंड करना हो कुछ नहीं करना, यह है तो एक चीज़ कही सी देखने ਨੂੰ देख लो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ जो वेरीएबल्स ने ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ नंबर लगा कि नहीं, इस दे नाल कुछ नहीं लगा 1, इस दे नाल कुछ नहीं लगा 1, इस दे नाल भी कुछ नहीं लगा। देखो ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ x, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਚੱਕੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚੱਕ ਕੇ ਇਸ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ 2 in 1, x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਦੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ -2 + 3y या y खुद सीखा y इज इक्वल टू 34, 3y + y 4y हो जाएगा, -2 + 4y 34 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ y ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਾਂ 4y ਇੱਧਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, -2 ਗਿਆ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ, जिदा ही परले पासे जाएगा -2 बन जाएगा +2, ठीक है। -2 बन गया +2, 34 + 2 36, 4 इतने 4y हूँ जो मैं दसा सीगा पहले भी 4y नाल 4 डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल टू 36/4, y की वैल्यू की आ जाएगी 9 आ जाएगी, y 9 आ गया। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸੌਖੀ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਉਸ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੌਖੀ ਲੱਗੀ ਕਿ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 9 ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ x ਦਾ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ कि x इज इक्वल टू -2 + 3y इक्वेशन से y की जगह 9 पुट किया, 9 से 27 तो -2 से 27 तो -2 25, x की वैल्यू 25, दो नंबर मिल गए। वेरीफिकेशन करते हैं, दोनों इक्वेशन साड़ियाँ सी x + y इज इक्वल 24 तो x इज इक्वल टू -2 + 3y, यही दो इक्वेशन सीगियाँ। वैल्यू पुट करांगे, x की वैल्यू की कहते हैं साड़ी 25 आई है तो 25 + y की वैल्यू की आई है 9 आई है तो 9, 25 + 9 34 होता, दोनों साइड से इक्वल यानी करेक्ट। दैन x इज इक्वल टू -2 + 3y, y की वैल्यू पुट करांगे, y की वैल्यू 9 सीगी तो 9 तो 25x सीगा तो x, इधरों असी 25 तो उधर रखना, दूसरे में सॉल्व करो 3 9 27, 27 -2 25, दोनों दोबारा सेम, दोनों कंडीशन सैटिस्फाई, LHS RHS है यानी कि साढ़े आंसर्स करेक्ट ने। हुण यह तो होगा फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप दे विच की सीगा साढ़े वेरीएबल्स जो ने वो सारे वेरीएबल्स दे विच दोनों दो इक्वेशन जो कंडीशन आउंदियां सीगियां, दोनों कंडीशन दे विच कोई ना कोई एक कंडीशन घट्टो घट्ट सी जो कि इदां दी सी जिहदे नाल एक्स दे नाल कुछ लगा नहीं है। बट नैक्सट क्वेश्चन च इदां नहीं होएगा। नैक्सट क्वेश्चन है अलग तरह दे, सैकेंड टाइप आ गया साडा, दो ही है, एक मैं एक्सरसाइज चो कढ़िया, एक यदि एग्जाम्पल च की है। ईजी है बट इस च थोड़ा जिहा डिफरेंस की है, तुहाडी इक्वेशन जो तुसीं देखोगे तर समझ लगेगा। क्वेश्चन देखो, दो नंबर ही फाइंड करने ने, दोबारा उस भी दो नंबर फाइंड करने सीगे बट इन्होंने कंडीशन सम वाली नहीं दी है, इन्होंने कुछ और करता। सच डैट द सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट एंड थ्राइस द सेकंड इज 103 एंड 4 टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड 7 टाइम्स सेकंड बाय 11। देखो दो अलग कंडीशन बनाती, पहले वाले की सी कंडीशन के सम ऑफ टू नंबर, बट इतने सम ऑफ टू नंबर नहीं है, इतने है मतलब कि कुछ है सम ऑफ ट्वाइस इदा उदा सेम नहीं है, लेकिन सम ऑफ टू नंबर्स जो होएगा ए वाली चीज़ जिथे आ गई सम ऑफ टू नंबर, तो तुहानू पक्का गारंटी है तुहाडी जो फर्स्ट इक्वेशन x + y इदां ही बनेगी, तो ये तो इहदे कोल भी 1 की कहते इहदे कोल भी नाल कुछ नहीं होगा, इहदे कोल भी नाल कुछ नहीं होगा, ईजिली सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। बट इत्थे आएगी दिक्कत क्योंकि इत्थे वो वाली चीज़ उन्होंने कर दी गायब। दोनों क्वेश्चन सेम ने, दोनों क्वेश्चन कोई फ़र्क नहीं है। देखो फाइंड टू नंबर सच डैट सारा कुछ सेम, चेंज कितने इत्थे 103 है, सारे थ्राइस द सेकंड इसमें लिखा भी उसी तरीके नाल है कि एक लैटर उसी जगह आ रहा है जिथे सीगा, बस इतने मैं 7 थोड़ा जहा करता। तुम देखो सब सेम है, 103 92 ए फ़र्क है, 11 इतने 2 बस ए फ़र्क है, और कुछ फ़र्क नहीं है, सिर्फ वैल्यू चेंज की है, सेम टू सेम क्वेश्चन सीगे।
ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਸੋਲਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਂਡ 2 ਨੰਬਰਸ, 2 ਨੰਬਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿਹੜੇ, ਸਮ ਆਫ ਟਵਾਈਸ ਦ ਫਸਟ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੋਅਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਸਟ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੈਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਸਟ ਨੰਬਰ x, ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ y ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਗਈ ਸੀਗੀ ਸਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਲੱਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾ ਦਿਓ ਪਲੱਸ। ਫਿਰ ਟਵਾਈਸ ਦ ਫਸਟ, ਟਵਾਈਸ ਦ ਫਸਟ ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਟਾਈਮਸ ਫਸਟ, ਐਂਡ ਥਰਾਈਸ ਦ ਸੈਕਿੰਡ, 3 ਟਾਈਮਸ ਸੈਕਿੰਡ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 103, ਤਾਂ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 103 ਲਿਖਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੈਟਿਸਫਾਈ। ਐਂਡ 4 ਟਾਈਮ ਫਸਟ, 4 ਟਾਈਮ ਫਸਟ ਕਰ ਦੋ, 4 ਟਾਈਮ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਐਂਡ 4 ਟਾਈਮ ਦ ਫਸਟ ਐਕਸੀਡਸ, ਐਕਸੀਡਸ ਆ ਗਿਆ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 7 ਟਾਈਮਸ ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਏ 1। ਹੁਣ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਐਕਸੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ 7 ਟਾਈਮਸ ਕਰ ਦਈਏ ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 11 ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਮੋਲਰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 11 ਨੰਬਰ ਹੋਰ ਕੇ ਐਡ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਇਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ। 2 ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੈ। 4 ਟਾਈਮ ਦ ਫਸਟ, 4 ਟਾਈਮ ਕਰਤਾ ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਦਾ 4x, ਐਕਸੀਡਸ ਆਇਆ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ 7 ਟਾਈਮਸ ਤਾਂ 7 ਟਾਈਮਸ ਸਮੋਲਰ ਪਲੱਸ ਸਮੋਲਰ ਕਰ 7 ਟਾਈਮਸ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਪਲੱਸ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 11, ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰਤਾ 11, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈਆਂ ਦੋਨੋਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ x ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ x ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਸ y ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਇਸ x ਨਾਲ ਵੀ, x y ਨਾਲ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏ ਤਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਤਰੀਕਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਵੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸੇਮ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ 2 ਹੈ, ਇੱਥੇ 4 ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਅਗਰ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਨੰਬਰ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੈ, ਹੈ ਨਾ, 2 2 ਦਾ 4। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਟੈਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਇਸ 'ਚ ਕੀ ਸੀ 4x ਇੱਧਰ ਸੀ 7y ਉੱਧਰ ਹੈ, ਬਟ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕੀਤਾ 7y ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਧਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਅਰੇਂਜਿੰਗ ਟੂ 7y ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਭੇਜਤਾ, ਤਾਂ -7y = 11। ਹੁਣ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਰਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ, ਚਾਹੇ x ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਚਾਹੇ y ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ, ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਸੇਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ x ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ 4 ਹੈ, ਇੱਥੇ x ਦੇ ਨਾਲ 2 ਹੈ, ਇਸ 2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 4 ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, 2 ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ y ਦੇ ਨਾਲ 7 ਹੈ, ਇੱਥੇ y ਦੇ ਨਾਲ 3 ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਪਰ 7 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ 21 ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਨੀਚੇ 3 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ ਇਹ ਵੀ 21 ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ x ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 2 ਸੀਗਾ, ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ 2 ਫੈਕਟਰ ਹੈ 4 ਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚੱਕੀ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ 2 ਨਾਲ, ਮਲਟੀਪਲਾਈਂਗ 2 in 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੇ। ਸਿੰਪਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਰਫ ਇੱਧਰ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ x ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੇਖੋ 2 ਕਿਆ ਸੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ, ਤਾਂ 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 2x ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕੱਲਾ 2 ਜੋ ਹੈ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ 4x ਬਣਾਤਾ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਨਾਲ 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਗਾ, यानी कि 2 2 सा 4 4x बन जाएगा, 2 3 सा 6 6y बन जाएगा, 2 × 103 206 बन जाएगा, सब नाल वो चीज़ होएगी, ठीक है। तो सब नाल असी करना है, 2 ਨੂੰ 2x ਨਾਲ ਕੀਤਾ 4x, 2 ਨੂੰ 3y ਨਾਲ ਕੀਤਾ 6y, ਤੇ ਉਹੀ 2 ਨੂੰ 103 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 206। ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਨ, ਇੱਕ ਇਹ 4x ਵਾਲੀ 4x + 6y, ਦੂਸਰੀ 4x ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ 4x - 7y।
ठीक है। इन्हां दोनों नूं करा देना माइनस, ते ध्यान की रखना जिस दे विच ए कॉन्स्टेंट वाला नंबर वड्डा होवे वो पहलां लिखना है। जिवें 206 वाला हैगा वा, है ना, 206 वाला आपां नूं दिख रहा हैगा वा कि वड्डा है, तां असीं सबट्रैक्टिंग वाली ए वाली लाइन चाहे ना लिखो, तुसीं ए लिख दो कि जिहड़ी इक्वेशन है 4, तां 4 नंबर पाया माइनस 3, ए वाली इक्वेशन सीगी 3, है ना, तो 4 माइनस 3 लिख दो क्योंकि 206 आप ऊपर रखना 4, तो 4 वाली इक्वेशन लिखी 4x + 6y 206, 3 सीगी 4x - 7y = 11। उन्होंने माइनस करना होवे तद की करते हैं, जो भी साइन लगा हो ना उसका उल्टा लिख दो। जिवें इत्थे कोई साइन नहीं यानी कि प्लस होगा, प्लस का उल्टा माइनस, माइनस लिखा माइनस की जगह प्लस लिख दो, इत्थे कोई नहीं मतलब प्लस, प्लस की जगह माइनस, ठीक है। हुण होएगा कि 4 - 4 कितना बनता है, 4 - 4 0, तो 0x 6 एंड नहीं देखना, इसमें देखना 6 + 7 13 13y 206 - 11 195, ठीक है। तो 0x का तो मतलब कि कोई भी नहीं है, तो 0 ही बन गया हो। 13y बच्चे 13y = 195, 13 डिवाइड y की वैल्यू आ जाएगी 15, डिवाइड करके अगर देखना मैं इतने दिखा भी देना वा तुहानू 13 195, तो 1 तो करा 13 आ जाएगा, 6 एंड 5 65, 13 5 65, आंसर आ गया 15, ठीक है। यही y = 15, जो भी क्वेश्चन है तुहानू जिहड़ी मर्जी जिहड़ी सही लगे, मैनू ए वाली सही लगी, सब तो छोटी यही लग रही सी, इस पुट कर दो, ठीक है। तो 4x = 7y + 11 सी, y की जगह 15 लिखिया, 7 × 15 105 + 11 116, 4 ਨੂੰ डिवाइड करांगे 116 नाल 29 आंसर आ जाएगा। दोनों नंबर्स पर बदल के एक 29 से एक 15 सीगा। चैक करांगे, चैक करने लिए की किया, दोनों कंडीशन लिखी। पहली कंडीशन 2x + 3y = 103 सी, x की जगह 29, y की जगह 15, 29 2 = 58, 15 3 = 45 = 103। इन्हों भी प्लस करके देखें 103, दोनों सैटिस्फाई, फर्स्ट इक्वेशन मतलब कि सही, मतलब फर्स्ट इक्वेशन से सैटिस्फाई कर रहे दोनों आंसर। दोबारा तो 4x = 7y + 11, x की जगह से की पुट किया 29 तो y की जगह 15, दोबारा वही करा, दोनों मल्टीप्लाई किया 116, इनू मल्टीप्लाई किया 105 + 11, ठीक है। इन्हों मैं मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा नहीं क्योंकि वो ऑब्वियसली देखना तो देख लो। 29 में मल्टीप्लाई करना कि 4 नाल, 9 4 = 36, 4 2 = 8, 9 10 11 116 ही बनता, ठीक है। इधर 7 15 15 7 105 होता, + 11 116, तो दोनों है करेक्ट आ गए, मतलब कि साढ़े आंसर्स करेक्ट ने। वेरीफिकेशन लिखने की कोई नीड नहीं, मैं हजे भी दस रहा, बस मेन गल की वेरीफिकेशन मेरा पॉइंट दसन का यही है वै कि तुहानू पता होना चाहिए है, तुहानू यह चीज़ पता होएगी तो ही की कहते तुहाडे सम्स गलत नहीं होंगे, चेक कर पाओगे तुसीं, ठीक है। और नैक्सट चीज़ करते हैं, नैक्सट चीज़ की होएगी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ऐसा सीगा सेम क्वेश्चन है, कुछ फ़र्क नहीं है, सेम ही की कहते हैं इक्वेशन भी बनी है, फाइन टू नंबर सारा सेम टू सेम है, बस इक्वल टू का इतने जिमें इतने सीगा 103, 103 की जगह 92, 2 की जगह आ जाएगा, मतलब 11 की जगह 2 आ जाएगा, बस यही फ़र्क है। देख लो मैं लिखा भी है 92 से 2, बाकी सब सेम, ठीक है। तो तरीका भी सेम रहेगा करन दा। ए हुण सम तुसीं आप करके दिखाना मैनू, मैं इत्थे आंसर इसते नहीं दस रहा वा, तुसीं मैनू खुद इनू सॉल्व करके दिखाना है तो आंसर दसना है वै, ठीक है। नेक्स्ट तो अगला मैं सम कराऊँगा। नैक्सट सम है वै थर्ड टाइप का, ठीक है। थर्ड टाइप के सम असीं आ गए। हुण थर्ड टाइप के अगर देखो ए किहड़ी टाइप है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, 2 इज़ एडेड टू ईच ऑफ दैम, रेशो भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ही होंदी हैगी है। फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक क्वेश्चन मैं दोबारा ए की कहते हैं, ए सेम क्वेश्चन तुहाडी एग्जाम्पल च भी है तो लास्ट क्वेश्चन भी है तुहाडी एक्सरसाइज का, तो मैं गलती नाल 2 बारी लिख दिता सीगा, बट है एक बारी करना ऑब्वियसली। तो हुण इन्हां दे विच की फ़र्क कोई भी नहीं है, सारे सम्स एक तरह के ने, नंबर्स चेंज किए, कंडीशन चेंज की है, बट करना एको तरीके नाल है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले हर एक सम नूं जब तुसीं देखोगे, तुसीं समझोगे ना, तुसीं आप कहोगे कि हाँ यार ये सारे टाइप्स जो ने, टाइप्स मैं तां ही करवाई है कि टाइप्स नाल तुहानूं ईजी होएगा। हुण पहला क्वेश्चन अगर मैं देखा, इत्थे लिखा न्यूमरेटर फ्रैक्शन हैगी है, इनक्रीज़ कर रही है 1 नाल, ठीक है। कि न्यूमरेटर हुंदा की है, पहला मैनूं यह चीज़ भी क्लीयर करनी चाहिए, सॉरी। तो न्यूमरेटर हुंदा, अगर मैं कहां P/Q की फॉर्म दे विच है, तो ऊपर वाला हुंदा न्यूमरेटर, नीचे वाला हुंदा डिनोमिनेटर,
जो उन्होंने क्या न्यूमरेटर च की कर दो प्लस इनक्रीज़ कर दो 1, यानी न्यूमरेटर च +1 कर दो तां की बनेगा 1/2 बनेगा तुहाडा आंसर कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों है, पर अगर तुम कल्ले न्यूमरेटर च +1 करोगे तो 1/2 बन जाएगा। फिर उन्होंने कि अगर डिनोमिनेटर च इनक्रीज़ बाय 7, डिनोमिनेटर च 7 बता दोगे कल्ले, न्यूमरेटर च कुछ नहीं करोगे, तद वो 1/3 बन जाएगा। हुण फ्रैक्शन फाइंड करो असल च सीखा की ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ क्वेश्चन 'ਚ, ठीक है। समझ लग रहे पॉइंट्स बन रहे हैं। अगर बनाने की कंडीशन ਇੱਦਾਂ ही मैं ऊपर ही लिख देना वा, न्यूमरेटर है x/y चीज़ हैगी है। पहला क्या न्यूमरेटर फ्रैक्शन का इनक्रीज़ कर दो 1 नाल, चलो x+1 कर दो, और जो इन्होंने कहना न्यूमरेटर इनक्रीज़ कर दो तो लाइन भी पूरी उधर जाएगी, इदा नहीं अलग तो कर रहे हैं, ठीक है। ताकि बनेगा इट बिकम्स 1/2, बना दो 1/2, लो 1/2 बन गई। इफ़ इट्स डिनोमिनेटर, हम दोबारा वही x y लिखा सी, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ डिनोमिनेटर की गल की y+7 कर दो, y+7 है तो इट बिकम्स 1/3, ਹੁਣ बन जाएगा 1/3। ਇਹ दो कंडीशनां ने, दोनों कंडीशनां लिखो पहला, फिर फ्रैक्शन फाइंड करने का मैं तरीका दसना किस तरह करना है, ठीक है। न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है सेम, x y लैट कितने इतने पहली इक्वेशन आई सी x न्यूमरेटर नाल +1 करो करता तो नीचे डिनोमिनेटर ही रहा, तो आंसर तुहाडा 1/2 बन रहा है। फिर उन्होंने क्या डिनोमिनेटर में 7 करोगे तो तुहाडा 1/3 बनता, ठीक है। यह दो कंडीशनां मैं इत्थे लिख लिया पहला। हुण कंडीशनां लिखण नाल मैनूं मतलब की है, कंडीशनां पहलां लिखनियां, सब तो मेन स्टैप है करो, उस तो बाद जो करना कैलकुलेशन करनी है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर च सब तो मेन स्टैप है, हर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सम दे विच मेन स्टैप है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जो भी यह चीज़ दित्ती है क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इत्थे भी मैं किया वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एनू ऊपर लैके जाओ 2x + 1 इक्वल टू है, इक्वल टू उत्थे ही रखो, वाई नू लैके जाओ उत्थे, वाई मल्टीप्लाई बाय 1 वाई, एक इक्वेशन बन गई। सेम इत्थे 3 नू ऊपर लैके जाओ 3x, ठीक है, इक्वल टू है, फिर वाई नू उत्थे लैके जाओ y+7, 3x = y+7, दो इक्वेशनां बन गई। अरेंज करो एक तरह का, हुण इसनूं इस तरह का लिखण का की मतलब है, इधर अगर मैं देखा इस चो काफ़ी चीज़ हो रही है मैच, मैं की कहते हैं इसनों अलग वे ना किया, इसनों होर भी अलग वे ना किया जा सकता सीगा, अलग अलग वेज़ नाल इसनों सॉल्व कर सकता सी सॉम नूं। मैं हजे ही देखा, मैं अपनी तरफ तो करता एक वे, इसका हजे एक आंसर मिला कि यह देखो y की वैल्यू 2x+2 है, मैं इत्थे पुट कर दूँगा y की वैल्यू 2x+2, 1 मिनट च आंसर निकल जाएगा। मैं शायद कोशिश भी वही की सी कि इदा पुट कर देवां, लेकिन मैं नहीं किया, क्यों उसके अलग अलग मैनूं ध्यान नहीं आया होना शायद तद, या इत्थे कुछ होर तरीका लगाया होवे। मैं हर एक सब नूं करन दे काफ़ी तरीके ने, तुहानूं देखना तुहानूं किहड़ा सूट करदा है। हुण इत्थे तुसीं की कर सकदे हो, सिंपल चीज़ दसां, वाई की सारी इक्वेशन दित्ती हुई है, इस च पुट कर दो, मैं हजे इत्थे साइड ते कर भी दिंदा, की बनेगा 3x, वाई की जगह की है 2x+2, 2x + 2 ते इत्थे इक्वेशन च सीगा +7, 3x नूं इत्थे रखो, 2x नूं उत्थे रखो, 7 + 2 7 8 9, 2x को इतने भेज दो, 3x - 2x हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस का से उत्थे जाके माइनस = 9, 3x - 2x होंगे x की वैल्यू 9 आ गई, सीधा ही आंसर आ गया। और मैं इस चीज़ को करन लई थोड़ा जहा स्टैप बताया सीगा, सच्ची दस रहा, सीधा आंसर निकल रहा है, मेरा सीधा आंसर नहीं निकलेगा। मैं किस तरह कितना मैं दिखा देना वा, किस तरह 2x ऐसी 3x ऐसी, पहला मैं रीअरेंज की, रीअरेंज यानी कि x y नूं इकट्ठे करो तो 2x, ठीक है। पहली इक्वेशन जो देखे 2x, मैं y नूं इत्थे लेके आया -y, इक्वल टू नूं उधर भेजा उधर -2। देखो इत्थे दिमाग खराब है ना मेरा, साफ साफ मैनूं दिख रहा इन्हां नाल कुछ भी नहीं है, तो n की वैल्यू मैं पुट कर भी सकदा वां, फिर भी मैं नहीं किया, क्यों, क्योंकि मैनूं पता ही नहीं चलिया। देख सेम इत्थे y नूं एक साइड भेज दो 3x - y = 7, दो इक्वेशनां बन गई। हुण इधर अगर असीं देखिए जावे ना, साफ साफ सानू दिख रहा है दोनों सेम ने, सेम ही ने। आपां जदों देख लिए ये दोनों सेम होण ना चीज़, तां असीं की करदे हां, दोनों नूं माइनस कर दिंदे हां, तां माइनस कर दांगे। हुण वड्डा कौन है पहलां है देखो साइड ते, मैं कहा सी ना इसनूं वड्डा कौन है, तो 7 वड्डा, तो इसनूं उपर लिखांगे इसनूं थल्ले, तो मैं वही लिखिया 4 - -3। मैं डैश क्यों पाए, क्योंकि जो दोनों इक्वेशन से उन्होंने रीअरेंज किया सी, तो मैं डैश पाते थे 3 तो 4, 3 इक्वेशन को रीअरेंज किया तो 3 4 किया तो 4, दोनों माइनस किया, 3x - y = 7, 2x - y = -2,
ਹੁਣ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ, ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਪਲੱਸ, ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਪਲੱਸ, 3 ਮਾਈਨਸ 2 1 1x ਮਾਈਨਸ प्लस ਇੱਥੇ -1 +1 ਮੰਨ ਲਓ, ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਯਾਦ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, -1 +1 0 ਤੇ 7 + 2 9, यानी कि x = 9। ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੇਜ਼ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਦੈਨ ਇਹੀ x = 9 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, 1 ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2 ਇਕੁਏਸ਼ਨ 3 ਇਕੁਏਸ਼ਨ 4 ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਸ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ y ਇੱਥੇ x ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ y डायरेक्ट आंसर निकल जाना, पुट करता 2x + 2 = y, x की जगह 9 पुट करेंगे, 9 × 2 = 18, 18 + 2 20, तो x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 20, साडा किसी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमीनेटर होंगे, तो 9/20 रेशो बन गई, या कह लो फ्रैक्शन बन गई साडी। वैरीफिकेशन करनी है, वैरीफिकेशन लिए याद रखो जो तुहाडियां मेन सीगियां ना कंडीशन, उन्होंने ही देखो, होर किसी को देखने की लोड़ नहीं। तो वही लिखा x + 1/y = 1/2 सीगा, x की जगह 9 लिखो, y की जगह वही 20, 9 + 1 की हो जाएगा 10, 10/20 कैंसिल करेंगे 1/2, 1/2 1/2 दोनों साइड्स आ गई हैं। ये x सेकेंड कंडीशन से x/y + 7 = 1/3, x की जगह 9, y की जगह 20, 20 + 7 27, 9/27 कटिंग करेंगे 1/3, सेम दोनों आगे सेम है, यानी कि आंसर साडा करैक्ट है, 9/20 सही आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन